سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حالات حاضرہ اور اصلاح معاشرہ، یہ ہے مولانا کا موضوع۔ میں سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ادھر ادھر کچھ لوگ کھڑے ہیں وہ برائے مہربانی جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ اس تقریر کے بعد صدارتی کلمات کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ حضرات محترم، اپنے عزیز طلبہ کی دعوت پر یہاں آپ کے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ورنہ اب اس طرح کے پروگرام میں کم شرکت ہوتی ہے میری، اور یوں بھی رات جب زیادہ بھیگنے لگتی ہے تو میرے لیے دقت ہوتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حالات حاضرہ کے تقاضے سے امریکی واچ ڈاگ فریڈم سوسائٹی یا ہاؤس کے ایک رپورٹ سے کرنا چاہوں گا، جس سے ہندوستان جنت نشاں کی تصویر ہی کچھ بدلی نظر آتی۔ یہ ایک امریکی ادارہ ہے اور سالانہ اس کی رپورٹ آتی ہے اور دنیا کے ممالک کے جمہوری اقدار کے تحفظ، حکومتوں کے کردار، وہاں رہنے والے عوام کے حقوق اور ان کے مسائل کے حوالے سے وہ ملک کتنا محفوظ یا کتنا مخدوش ہے، کس قدر اس نے ترقی کی ہے یا اس کے ہاں گراوٹ اور تنزلی آئی ہے۔ بڑی ہی تکلیف دہ تصویر اس جنت نشان ملک کی آئی ہے کہ اب یہ ملک غیر محفوظ ہو چکا ہے، اور جب کسی ملک کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ مکمل ملک خود اپنے باشندوں کے لیے، اپنے یہاں رہنے والوں کے لیے غیر محفوظ ہیں، اس کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اس کی آزادی محفوظ نہیں ہے، اس کی جمہوریت محفوظ نہیں ہے، اس کے مسائل محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کے سیاسی حقوق محفوظ نہیں ہیں، اس کے قلمکاروں کے قلم کر دیے گئے ہیں، زبان کاٹ لی گئی ہے، اور ملک کے اقدار کی حفاظت کرنے والے اہل قلم کے قلم ہی نہیں سر قلم کر دیے گئے ہیں اور آزادی چھین لی گئی ہے، تو یقیناً وہ ملک انتہائی مخدوش اور غیر محفوظ ہے۔ اس رپورٹ نے ہندوستان سے محبت، سچی محبت رکھنے والوں کو جو ٹھیس پہنچائی ہے، اور جو لوگ امر واقعہ سے پہلے سے واقف تھے کہ ملک کی یہ تصویر تو بننی ہی تھی بین الاقوامی سطح پر، چاہے ہم اپنی عظمت کا اور اپنی جمہوریت کا جتنا ڈنکا پیٹیں اور ڈھول بجائیں، لیکن دنیا میں انصاف پسند لوگ ہیں اور ہمارے ملک کے حالات سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے 1.5 ہفتے پہلے یہ دیا تھا کہ یہاں حقوق لوگوں کے محفوظ نہیں ہیں، سیاسی رہنماؤں کی زندگی محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے آوازوں پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں، اور جو لوگ زیادہ بول رہے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جا رہا ہے، اور جو لکھ رہے ہیں ان کے قلم کر دیے جا رہے ہیں، ان کے انگلیاں فگار کر دی جا رہی ہیں، ان کی آواز پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب اپنا ملک مخدوش تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کے قید و بند کا سلسلہ، مخالفین کی تعذیب اور ان کے قید و بند کی وجہ سے اب اپنا ملک غیر محفوظ ہو گیا ہے۔
कोई मुल्क का बाशिंदा जो अपने वतन से, वतन की मिट्टी से सच्ची मोहब्बत करता हो, वतन की आज़ादी के लिए जिसके बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हों, अपने सर कटाए हों, दिल्ली से अम्बाला तक जिसके बुज़ुर्गों के सर और लाशें हर दरख्त से लटकी हुई हो, ये खबर पढ़ने के बाद वो अगर ज़िंदा है तो उससे, मेरी बात मानिए, उससे ज़्यादा सख्त जान कोई नहीं। आपका मुल्क कितना मखदूश है। पिछले साल आपका मुल्क रेटिंग में 77 पॉइंट पे था, अब घट करके 10 पॉइंट नीचे आकर के 67 पॉइंट पे आ गया है। ये है मुल्क की तस्वीर जो पूरे मुल्क के लिए जो है तशवीश का बाइस है। बाकी एक ग्रुप है उसके सर पे जूं नहीं रेंगती, इसलिए कि ये उसके ऐन मंशा के मुताबिक है। वो इस तरह के इदारों की रिपोर्ट की अहमियत ही नहीं देते, इसलिए कि उन्होंने प्रेस का गला घोंट रखा है। बोलने वाले और लिखने वालों को जो है बोलने की आज़ादी सल्ब कर ली है। जो लोग हैं उनको झूठे मुकदमात में फंसाए गए हैं। और हफ्ता और 10 दिन नहीं गुजरा था कि अमेरिका के बाद स्वीडन की इसी तरह की एक रिपोर्ट आई और उसने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नंगा करके रख दिया है। उसने और इससे ज़्यादा भयानक तस्वीर वतन अज़ीज़ की रखी है कि यहाँ के बाशिंदे खुद अपने वतन में महफूज नहीं हैं, सियासी जमातें महफूज नहीं हैं, उनका वजूद ख़तरे में है। जो लोग हुकूमतों पे तनकीद करते हैं, वो चाहे मीडिया के लोग हों, सहाफ़त के लोग हों, आज़ाद अखबार के लोग हों, सियासत में रह करके बोलने वाले लोग हों, उनकी ज़बान या तो काट ली गई है या उन्हें धमकी दी गई है कि अगर आप बोलेंगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आईटी सेल को पीछे लगाया हुआ है, आईबी को उनके पीछे लगाया हुआ है, सीआईए को उनके पीछे लगाया गया है और ऐसी सूरत पैदा की गई है कि हर आज़ाद आदमी अपनी जान अपने वतन अज़ीज़ में अपनी हथेली पे लेके चल रहा है। इस कदर गैर महफूज है। वो लोग आज भी सलाम किए जाने के लायक हैं जो नहायत जुर्रत के साथ और नहायत बेबाकी के साथ मुल्क की सच्ची तस्वीर अवाम के सामने रखते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पहुँचने नहीं दी जा रही। उनकी आवाज़ पहुँचने नहीं दी जा रही है, इसलिए कि वो लोग जो बेहिखा हैं, वजीफ़ा खार हैं, वो उससे बढ़ कर के चिल्लाने वाले हैं और भूंकने वाले हैं। उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनके हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं, उनकी आवाज़ का गला घोंट लिया जाता है। और जब सहाफ़ियों की आवाज़ दबा दी जाए, तनकीद करने वालों की आवाज़ बंद कर दी जाए, तो अल्लाह ही उस मुल्क का मालिक है। शायद ये ख़तरा होता है कि हर तनकीद के पीछे तखरीब उनको नज़र आती है, जबकि तनकीद बराए तामीर होती है और हुक्मरानों को आईना दिखाया जाता है कि ये मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क की दशा और उसकी दिशा क्या है। लेकिन इक़्तिदार के नशे में चूर लोग ये समझते हैं कि हम ही कुल हैं। जो कुछ है मुल्क की तस्वीर वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है जो इन दोनों आज़ाद इदारों ने हमारे हिंदुस्तान वतन अज़ीज़, हमें अपने देश से उतनी ही मोहब्बत है जितनी औरों को मोहब्बत है, और शायद हमको ज़्यादा मोहब्बत है इसलिए कि इस देश की अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कुर्बानी दी है तो हमने दी है। और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का इस्लामी इस्तिलाह जिहाद का फतवा दिया है तो हम मुसलमानों ने दिया है, आपने नहीं दिया है। हम जब जेलों में बंद थे, हमारे मौलाना उलमा की लाशें सूअर की खालों में बंद की गई थी नजिस जानवर के, तो आप जेलों में बैठ के अंग्रेज़ों की वफादारियां खरीद रहे थे और अपनी वतन के लिए गद्दारियां बेच रहे थे। आज ये मुल्क की बदकिस्मती है कि वो लोग हमारे देश के करता धरता सियाहो सफ़ेद के मालिक हैं जिन्होंने मुल्क के लिए गद्दारी की है और इस तरह से गद्दारी की है कि फ्रीडम फाइटर आज़ादी के मुजाहिदीन के साथ गद्दारी की।
انہوں نے انگریزوں سے وفاداری کی، ملک کے ساتھ غداری کی ہے، آج کہتے ہیں کہ ہم ہی دیش کے وفادار ہیں۔ کیسا ستم ہے، اور کیسے ان شہیدوں کے خون کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جنہوں نے آخری قطرے خون تک دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے لڑائی لی، لوہا لگ لیا۔ جلیاں والا سے لے کر کے، امبالہ سے لے کر کے ہندوستان کے بنگال تک انگریزوں سے پہلی لڑائی لڑنے والے سراج الدولہ یا چاہے شیر میسور، جن لوگوں نے پہلی لڑائی لڑی ہے آزادی کی تاریخ والے، جنہوں نے غداریاں کی ہے، آج دیش کے سب سے وفادار ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں آپ کی وفادار کون؟ یہ تصویر جب ملک کی آتی ہے تو پھر ایک ایسی صورتحال، وطن سے صحیح محبت، سچی محبت اور عقیدت رکھنے والے کی آنکھ آنسو نہیں، خون کے آنسو روتی ہے کہ ہمارا دیش غیر محفوظ ہے، ہمارے ہاں جمہوریت ختم ہو رہی ہے، تانا شاہی شروع ہو رہی ہے، بادشاہت شروع ہو رہی ہے کہ بادشاہ وقت کے اشارے پہ کوئی کال کوٹھری میں کہ تاعمر سورج نہ دیکھ سکے۔ یہ صورتحال ہے حضرت۔ ایک طرف ملک کی سیاسی تصویر یہ ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ اس ملک میں ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی 26 آیتوں کو کہتے ہیں کہ یہ بعد میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعہ آپ کو 8 دن نہیں ہوئے، کلام اللہ پر آپ یہ حرف کستے ہیں۔ خود آپ کے بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک حرف کا اضافہ نہیں ہوا ہے، جی نہیں، ایک زبر کا، ایک زیر کا نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے۔ آپ تو 26 آیت کی پوری بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ یہ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں داخل ہوئے، وہ خلفائے راشدین جن کے زمانے میں قرآن مجید نقل ہو کر کے علاقوں میں بھیجا گیا ہے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن مجید کی کتابت کروائی، اور وہ اجلہ صحابہ جو کاتبین وحی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان لوگوں کی نگرانی میں قرآن مجید لکھا گیا، اثر نو نہیں، مرتب قرآن کو لکھا گیا مختلف ٹکڑوں سے اور مختلف جگہوں سے لے کر کے۔ اور پھر حضرت عثمان نے اسی مصحف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلیں علاقوں میں اور شہروں میں بھجوائی تاکہ اختلاف ختم کر دیا جائے۔ شیعہ علماء میں سے کسی نے آج تک یہ جرأت نہیں کی ہے کہ یہ بات کے ادوار میں یہ 24 اور 26 آیتوں کا اضافہ ہوا ہے، اور آپ ان پر خاموش ہیں۔ حکمران وقت کی خاموشی معنی رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرپرستی ایسے لوگوں کی کیا کرتے ہیں تاکہ ملک میں افراتفری پھیلے، لوگوں کے ہنگامے ہوں، لوگ سڑکوں پہ اتریں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں سے پہلے خود ان کے گروہ نے ان کو ایسے ٹائٹل، ایسے خراب القاب دیے ہیں کہ ان کی تو اگر وہ صحیح میں غیرت مند ہوتے اور انسان ہوتے تو ان کو تو مر جانا چاہیے تھا، یہ خبر آنی چاہیے۔ لیکن جب دل پتھر ہو جاتا ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو خیر و شر کی تمیز جب اٹھ جاتی ہے تو پھر یہی صورت ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے لیے پیشگی قبر بک کروائی تھی، اس قبروں پہ جا کے لوگوں نے جوتے مارے ہیں، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہو، قبر کو، جگہ کو مسمار کر دیا، توڑ دیا ہے لوگوں نے، آپ نے بھی یہ تصویر دیکھی ہوگی۔ اور یہ سب صرف سیاسی وفاداری حاصل کرنے کے لیے کی۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، مگر آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کا بالکل اپوزٹ کرنا ہے۔ آپ پوچھیں کہ اس کا برعکس کیا کرنا ہے، قرآن مجید کو سختی سے آپ پکڑ لیں۔ قرآن مجید کو پکڑنا اس طرح سے نہیں کہ کوئی لے کے بھاگا جا رہا ہے، قرآن کی ہدایات و تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو الحمدو سے لے کر کے ناس تک جو احکام و جو ہدایات اور جو ارشادات ربانی ہے، زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، سماجی ہو کہ انفرادی ہو، بیٹی کے حقوق ہو یا والدین کی ذمہ داریاں ہو یا عام انسانوں کے اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کے حوالے سے ہوں، اپنے مذہب کے لوگ ہوں یا دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سب کے تعلق سے جو ہماری کتاب ہدایت
कुरान मजीद हमें हिदायत देती है। समाजी ज़िंदगी से लेकर के दीनी ज़िंदगी तक एक एक हर्फ को पकड़ करके अमल करके बताएं कि तुम कुरान को के हुरूफ को ज़ाहिरन मिटा सकते हो, लेकिन कुरान जो सीनों में महफूज है, नहीं, हमने अमल के ज़रिए से उसे महफूज कर दिया। हमने उसकी एक एक आयत के एक एक हिस्से पर अमल करके उसे मुजस्सम अमल बना दिया है। तो मिटा लो कुरान को, कुरान मिटने वाला नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी इंतज़ाम तो ये किया है कि कुरान मजीद को सीनों में भी महफूज कर दिया है और सफ़ीनों में भी महफूज कर दिया है। कुरान को हिंदुस्तान में मिटाओगे, कुरान को तुम पाकिस्तान में मिटा दोगे, जहाँ तुम जैसे अशरार और बदतमाश लोग रहते हैं जो दुनियादार होते हैं, लेकिन कुरान मजीद को सीनों से, इस बच्चे के सीने से नहीं निकाल सकते। उसने जो अलहम्दो शरीफ से नास तक की सूरतों को याद किया है और जिस तरतीब से याद किया है, तुम चाहोगे भी तो उसके सीने से तुम नहीं। ये अल्लाह ताला का रब्बानी और इलाही इंतज़ाम है कुरान मजीद का कि हिफाजत और सियानत का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। कुरान मजीद तुम जैसे मालूम सब के सब जला दिए जाएं, सीने जला दोगे, हाफजे जला दोगे, किसको जला दोगे? हमने तो अमल करके उसको महफूज कर लिया है, हमने तो सीने में महफूज कर लिया है। और तुम्हारे कहने से कुरान मजीद की ये आयतें बदली नहीं जा सकती। अब तुम खुद अपनी बिरादरी की लानत का शिकार हो। हम तो ये लफ्ज़, हम तो तुमको गाली भी नहीं, कुत्ते को भूखने हुए वो कुत्ते को भूखा जाता है। किसी आदमी को देखा है कि कुत्ता भूख रहा हो उस पर, तो पलट करके वो भी भूखता है। कहीं देखा है आपने? अगर देखा हो तो मुझे बताएं। कुत्ता भूखता रहता है, काफिला गुजर जाता है, भूखने वाले भूखा कर। ये लोग इस लायक नहीं कि मीडिया में इनका नाम आए, लेकिन ये सब क्यों किया जाता है? अपने आकाओं के इशारे पे उनकी वफादारी खरीदने के लिए। ऐसे लोग हों जो मुसलमानों में इज़्तिराब और बेचैनी पैदा करें, हैजान पैदा करें, ताकि कानून को अपना काम करने का कहे हमने नहीं किया है, इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया सड़क, इन लोगों ने हंगामे किए, तोड़ फोड़ की है, इमारतें जलाई है, कानून अपना काम करेगा। यूं ही लोग जेलों की सलाखों के पीछे हैं, 200-400 और चाहिए। आपको होशियार रहना। ये इस तरह के लोग, ये शैतान सिफत लोग हैं, ये इस तरह का काम करते हैं। हजरत, मेरा तीसरा हिस्सा ये है कि आपने अभी मौलाना इमरान साहब की तकरीर में आयशा का नाम सुना है। मैंने ये वीडियो आधी सुनी, मैंने ये वीडियो सिर्फ आधी देखी है। आधी देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अपने ऊपर जब्त नहीं कर सका, मैंने वीडियो देखना बंद कर दिया। कितनी मुल्क में आयशाएं हैं, कितनी फातिमाएं और खदीजाएं जो सिर्फ इसलिए मार दी गई, या उन्होंने आप कह सकते हैं कि हराम मौत का रास्ता क्यों चुना, लेकिन कोई आयशा ऐसे नहीं ये रास्ता चुनती। मैं उसके अमल की तारीफ नहीं करता, लेकिन वो कितनी मजबूर हुई है। उसने जो वीडियो पे अपनी बात अपने अब्बा और अम्मा से आखिरी गुफ्तगू की है कि अब्बा बस मैं साबरमती नदी में अपने आप को समो रही हूं। किस कदर वो अजियत से गुजरी है, कैसे कैसे उसे सताया गया है, जहेज के खातिर और पैसों के खातिर जैसी लानतें जिसके अजियतों से गुजारा गया है, तब जा करके उसने ये जान दी। क्यों? जहेज के लालची शौहर की तरफ से, दूसरों के पैसों पे ऐश करने वालों की तरफ से, निकम्मे और नाकारे लोगों की तरफ से, मुल्क भर में हर मजहब मसलक की कितनी ऐसी आशाएं हैं और कितनी ऐसी आशाएं हैं जो जलती रहती हैं और चिताएं उनकी जो होती हैं, जो डूबती और खुदकुशी करती रहती हैं, जो अपने बाप के आंख में आंसू नहीं देख पाती, जो अपने बाप की रातों की बेदारी देख करके तड़पती हैं कि अब्बू मेरे लिए तड़पते हैं, जहेज का इंतज़ाम नहीं किया। शौहर नामदार और ससुराल के लोगों के मुतालबे पे मुतालबे आ रहे हैं, तो बेटी एक दिन आखिरी इक़दाम के तौर पर अपने आप ही को ख़त्म कर। ठीक, उसका अमल गलत है, लेकिन इस गलत पर मजबूर किसने किया?
ہم اور آپ جیسے شوہروں نے، ہم آپ جیسے شوہروں کے ماں باپ نے اس کو مجبور کیا۔ میں ایسے لوگ جو جہیز کے لوگ ہیں، ہم لوگ تقریر کرتے ہیں زمانے سے کہ جہیز ایک سماجی لعنت ہے، جہیز ایک سماجی ناسور ہے۔ میں نے اس لفظ کو ختم کر دیا عائشہ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ یہ ایک ماڈرن گداگری اور بھکاری پن کا طریقہ ہے۔ جہیز مانگنے والے جدید قسم کے بھکاری ہیں جو دوسروں کی دولت پہ اپنا قد اونچا کرتے ہیں۔ جو دوسروں کے کمائی پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور شریک ہیں اس میں لڑکے کے باپ بھی، لڑکے کی ماں بھی شریک۔ لڑکے کے گھر کے لوگ اپنے بچوں کی اگر یہ تربیت نہ کرتے، یہ نئے فیشنیبل جو گداگر ہیں بھکاری، جو دوسروں کے صوفوں اور کرسیوں اور فریج اور واشنگ مشین اور سہولتوں کی بنیاد پر اپنا قد اونچا کرتے ہیں اور 4 دن تک باہر رکھا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو منع کیا تھا، شادی ہوئی نہیں، جہیز پہلے پہنچ گیا اور نمائش ہو رہی جہیز کی۔ کیوں بھئی اندر باہر نہیں ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ اتنا سامان آیا ہے۔ آپ دوسروں کے ٹکڑے پر پلتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کی جب یہ حیثیت نہیں ہے، مانگ رہے ہیں وہ آج آپ کے جدید بھکاری ہیں، جدید ماڈرن بھکاری ہیں آپ، جو دوسروں کے پیسوں سے عیش کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، آپ نے اپنا ذہن ہی نہیں بنایا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت نہیں دی تھی تو ضرورت کیا ہے؟ آدمی اپنی جیب کو دیکھ کر کے جو آگے بڑھتا ہے۔ یوسف مصر کے بازار میں یوسف کے خریدار بن کے آپ بھی کھڑے ہیں اور یوسف کے خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس۔ اگر لڑکے یہ طے کر لیں کہ ہم ایسے باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے جو ہمارے لیے جہیز چاہیں گے، مجھے صرف ایک پڑھی لکھی تعلیم یافتہ باسلیقہ لڑکی چاہیے جو گھر کو جنت نشان بنا دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں ایک وقت ہم دونوں فاقہ کر کے رہیں گے، ایک وقت کھائیں گے، ایک وقت فاقہ کریں گے، لیکن سسرال کے ٹکڑے پر نہیں پلیں گے۔ کیسے بے غیرت ہو یار تم لوگ کہ سسرال کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو؟ نکمے، نکٹو، کیسے تم لوگ بھیک مانگ کر کے کھا رہے ہو، سسرال کا ٹکڑا کھاتے ہو، ایک دن نہیں آئے گا تو نہیں کھاؤ گے تم؟ شرم نہیں آتی؟ اگر تم کو فقیر کہا جائے تو مجھے گالی دو گے کہ یہ مولوی ہم کو بھکاری کہتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جہیز کے بارے میں سوچو، جو جہیز کی جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو وہ بھی ضروری تو نہیں ہے کہ بھکاری کو دانہ ملتا ہے، بھکاری کو روٹی ملتی ہے، بھکاری کو سکہ ملتا ہے۔ کیا دیتے ہو گھر پہ آنے والا بابا اللہ کے نام پہ جو مانگتا ہے، کیا دیتے ہو تم؟ یہی چیزیں تو دیتے ہو، کبھی دانہ دیتے ہو، کبھی پیسے دیتے ہو، کبھی روٹی دیتے ہو، کبھی پکا اور کبھی کچا۔ تم نے بھی بھکاری بن کے مانگا ہے، تم بھی فقیر اور بھکاری ہو، بس یہ ہے کہ ذرا ماڈرن طریقے سے، ہائی فائی لباس میں، سوٹڈ بوٹڈ بھکاری ہے۔ اگر تم طے کرو تو پھر آج کے بعد نہ کوئی آشا ڈوبے گی، خودکشی کرے گی، نہ کوئی عائشہ جلے گی، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے عجیب و غریب ہمارا کلچر بنا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو کیا بنایا ہے اپنے اس کو؟ ہم نے اپنے دین کی تعلیم نہیں پڑھی ہے کہ آدم النکاح برکتاً، ابھی پوری تقریر آپ نے پڑھی کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو کم خرچ والا نشین، لیکن ہم نے تو شادی کو بلا وجہ زیگ کا سامان بنا دیا ہے۔ 4 آدمی جاتے ہیں نکاح پڑھا کے۔ ہم جس وقت مدینہ منورہ میں پڑھ رہے تھے، مدینہ یونیورسٹی میں، مسجد نبوی سے مستقل ہم لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے نماز۔ ہمارے ایک شیخ تھے، شیخ ابو بکر الجزائری، انہوں نے اپنے بچے کی جس شخص لڑکے سے شادی کی تھی، نکاح مسجد نبوی میں ہوا۔ اس کے بعد اپنے داماد سے کہا کہ تم گھر چلو، میں اپنی بیٹی کو تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اپنی گاڑی پہ شیخ نے بٹھایا، بیٹی کو اس کے سسرال پہنچا دیا، ختم۔ بیٹا نکاح ایسے ہوتا ہے، تم اگر عزم کرو گے تو یہ ختم ہوگا، اور تم اگر لالچی بنو گے، حریص بنو گے، بھکاری بنو گے،
दूसरों के टुकड़ों पर पलना चाहोगे तो तुमको फिर गैरत क्यों किसी बात पे आती है? अगर कोई भिखारी कह दे तुम मांगते हो, तुम लालची हो। अगर ये नई नस्ल तय कर ले तो ये जहेज का खात्मा हो, फिर कोई लड़की नहीं जलेगी और न कोई खुदसोजी करेगी, न कोई जो है गरकाब हो। हजरत गिरामी, बहुत बहुत खुदा का शुक्र कि एक बड़ा फितना कुछ ही दिन के लिए सही टल गया। हमारे यहाँ प्रधानी का इलेक्शन होने वाला था, सीटें रिजर्व अनरिजर्व ये है, लेकिन प्रधानी हो या इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं, इसका एक बड़ा नुकसान मैंने ज़ाती तौर पर ये महसूस किया है कि प्रधानी जीतें चाहे न जीतें, लेकिन ये इलेक्शन दिलों में कुदूरतें और नफ़रतें ऐसे बो के जाता है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ ये दरख्त परवान चढ़ता है और लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। हर एक के अपने मफादात होते हैं, हर एक के अपनी तरजीहात होती है, काम करने से ज़्यादा वफादारियाँ होती हैं। ये सरकारी पैसे होते हैं, गांव बस्ती की सुधार और तरक्की के लिए होते हैं, उसमें उस बेचारे का कहाँ है? इसलिए ऐसे कैंडिडेट का इंतखाब होना चाहिए और ऐसे अंदाज से होना चाहिए कि जो आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके कंस्टिट्यूंसी के लिए वो तरक्की और रिफाही काम करवा सके। नाले हैं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, जो भी प्रधानी के काम है, अहल आदमी आए चुन करके और फिर उसे काम करने का मौका दिया जाए, उसे रहनुमाई की जाए, उसे बताया जाए कि इन कामों की ये तरजीहात है, उसे यरगमाल न बनाया जाए, उसे अपना पाबंद न बनाया जाए, उस पर अपना दबाव न डाला जाए। हर चीज़ एक मशवरे से, एक तरतीब से, एक तरफ से होना चाहिए। अक्सर है क्या कि ये भी एक बड़ी आमदनी का ज़रिया, ये भी एक बड़ी आमदनी का ज़रिया है और इसलिए लोग इसके लिए मारा मारी करते हैं, यहाँ तक कि दो भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी प्रधानी को 170 जूते का सलाम कि जो भाई भाई के दिलों में कुदूरत और नफरत। आप हंस रहे हो, मुझे मेरा भाई प्यारा है जो प्रधानी को लेकर के मुझसे नाराज हुआ है। मेरे चचा मुझे अजीज हैं। ये प्रधानी 4 साल के बाद चचा ता उम्र, और चचा और भाई से बनने वाला रिश्ता ता हयात। मैं रहूं न रहूं, मेरा बेटा रहेगा, उनके बेटे रहेंगे। ये कुदूरत, ये नफरत, ये अदावत का जो बीज आज डाला जाएगा, ये बरगद की तरह इसकी जड़ें भी फैलेगी और ये तनावर दरख्त होगा। नफरतों के दरख्त जब एक मर्तबा जड़ पकड़ लेते हैं तो फिर इनको काट करके अलग नहीं किया जा सकता। वो दुश्मनी होती है, मैं जानता हूं अपने अहबाब को, कि फिर सारे रिश्ते नाते शादी ब्याह मर जाए तो लोग नहीं जाते। मैंने कहा ना कि 170 जूतों का हार पहना हो ऐसी प्रधानी को, जो लानत बन करके तुम्हारे दो भाइयों को बांट दे, दो दोस्तों में तफरीक कर दे। वो जो आज दोनों के गम एक और दोनों के सुख एक होते, जो तुमको हराम खिलवाए, उस प्रधानी से बचो जो नाजायज काम करने के लिए मजबूर करे। ये दुनिया 4 दिन की है, हराम नाजायज। क्या क़यामत के दिन इस प्रधानी के ताल्लुक से, इलेक्शन के हवाले से जवाबदेही नहीं करनी है हमें? एक एक चीज का जवाब देना है और पूछगछ होगी। जैसा कुछ होगा आखिरत में अंजाम हो। इस दुनिया के लिए आखिरत की जन्नत क्यों अपने हाथ से आप गंवाते? क्यों आपस में बट करके कुदूरतें क्यों पैदा करते हैं? आपस में मेल मोहब्बत से रह करके इस प्रधानी को कहें भाई आप लोग जाएं, हम दोनों भाइयों को रहने दें। चचा बाबा, एक बाप का, एक दादा और दादी का खून हम दोनों बाप हम हमारे दोनों बाबा और चचा के अंदर दौड़ता है। फिर ये खून से खून को नफरत कैसे होती है? खून रख दीजिए आप, चचा और जो है भाई दोनों भाइयों के खून को रख दीजिए और देखिए कि दोनों में नफरत होती है कहीं? आपने तो इंसान हो करके, वो एक जामी शय है, बेअक्ल है खून, उसमें तो नफरत नहीं है। आप तो बाशऊर और अक्लमंद थे,
क्यों आपने आपस में बांट लिया, ऐसी नफरतें क्यों पैदा कर ली, ऐसी कुदूरतें और अजियतें हैं, आना जाना बंद कर दिया। ये ओहदे अमानत, ये ओहदे अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है, और इस ओहदे के ताल्लुक से जितनी चीज़ें हैं वो सब अमानत है, और इनकी खयानत के बारे में भी पूछा जाएगा। इसलिए ऐसे अफराद का इंतखाब करें जो आपके गांव की हमाजहत तरक्की के लिए काम कर सके। हजरत गिरामी, आखिरी बात, मैंने शायद मौलाना वक्त तो ज़्यादा नहीं लिया, आखिरी बात यह है कि मुल्क की मौजूदा तस्वीर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुल्क किधर जा रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में मुस्लिम उम्मा के सोचने का, हमारी नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या हो, उसकी सोच कैसी हो, उसे आगे क्या करना है, आगे जो है मुकाबला जाती मैदानों में क्या करना है, क्या कभी इस हवाले से तामीरी सोच की है? 1.5 साल तकरीबन कोरोना का हो गया। मुसलमान बच्चों की जो मदारिस में थे, छोटे स्कूलों में थे, उनकी तालीम का तो माफ़ कीजिएगा इस हिंदी लफ्ज़ के लिए हिंदू मैथोलॉजी के साथ सुहाहा हो गया। लेकिन सिर्फ बड़े ख़ानदान के जो लोग थे, जिनके बच्चे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले, एक दिन उनका ज़ाय नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संजीदगी से लिया। बताइएगा आप, संजीदगी से लिया। उन्होंने अपने बच्चों की तालीम दी, घर में बैठ कर के माँ और बाप दोनों ने तैयार कराया, IAS ऑफिसर बनाने के लिए, IPS ऑफिसर बनाने के लिए, सरकार की ज़रूरत के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। अपने बच्चों के लिए उन्होंने राहत की सांस ली है माँ बाप ने, कि लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम के नतीजे में अपने बेटों की तालीम, अपने बेटों की कोचिंग, अपने बेटों की तालीमी गाइड के लिए आपने कितना वक्त दिया? मेरे बड़े भाई, मेरे शागिर्द हैं, ये लोग बताएं कि कितना अपने छोटे भाई को वक्त दिया है। इस लॉकडाउन में आपने, जो बड़ा भाई है उसने छोटे भाई को कितना वक्त दिया है? हम मदरसा इस्लाह के लोग जानते हैं कि मकतब का क्या हाल हुआ है। और जो 1 साल का कमज़ोर है, पिछले साल का कमज़ोर, इस साल का कमज़ोर, अगर उसे प्रीवियस कर दिया जाए, प्रोग्रेस दे दी जाए, तरक्की दे दी जाए, तो जो अभी अलिफ बे नहीं पढ़ रहा है, वो जो पाना जाना उर्दू मौलवी इस्माइल शाह की तीसरी किताब पढ़ सकेगा? बेस है ही नहीं। घर की बुनियाद आप हवा में उठा रहे हैं सीधे सीधे। ऐसा घर कहीं बना देखा है कि जो यहीं से उठा दिया जाए? ज़मीन पे है ही नहीं घर, कुर्सी 1 फीट भी नीचे नहीं, कुर्सी भी छोड़िए, ज़मीन पर है ही नहीं। ज़मीन से 1.5 फीट पर घर उठाने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा? वो लोग IAS तैयार करेंगे, IPS वो तैयार करेंगे, डॉक्टर वो पैदा करेंगे, सरकार में काम आने वाले उनके घर के बच्चे होंगे, दूसरी ज़रूरतों के लिए उन्होंने तैयार किया है। आपने अपने बच्चों के लिए कितना वक्त सर्व किया है? घर में रहने के बावजूद आपने क्या किया है? बच्चों के ज़िया का जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल, सरकार, या पढ़े लिखे भाई, पढ़े लिखे चचा बाबा, पढ़ी लिखी बहनें? कौन इसका जिम्मेदार है? इसकी जवाबदेही तय नहीं होगी तो ये बच्चे हमारे किसी लायक नहीं होंगे। हम आप इनकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। और एक ऐसे वक्त में भी आप सो रहे हैं साहिबो, जब आप ज़माना क़यामत की चाल चल रहा है। आपकी बर्बादियों के चर्चे आसमान पे नहीं, मंसूबे बन चुके हैं। चर्चे नहीं हो रहे हैं, मंसूबे बन चुके हैं आपकी बर्बादी के। प्री प्लान सब कुछ हो रहा है, और आप हैं कि अपने छोटे भाइयों की तरफ से गाफिल हैं, उनकी तालीम की तरफ से गाफिल हैं, उनकी तरक्की के ताल्लुक से गाफिल हैं। आपका तो विजन भी नहीं है कि आपका भाई क्या बनेगा, आप अपने बेटे को क्या बनाने जा रहे हैं, सोचा भी शायद नहीं होगा। सोचिएगा, कुछ अगर कर सकते हैं तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जिन्हें हम बहुत प्यारे लगते हैं हमारे, इनमें कौन जो है बासलाहियत है आप नहीं जानते। सलाहियतें तराशी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।